Political temperatures are soaring in the poll-bound state of Uttar Pradesh after multiple raids by the IT department. UP Chief Minister Yogi Adityanath has taken a jibe at SP Chief Akhilesh, addressing him as being part of a Vasooli gang. While addressing a rally in Rampur, Yogi said that both nephew and son have been looting the people of Uttar Pradesh and that they belong to the Vasooli gang. Yogi further accused SP leaders of taking bribes for government jobs. So the face-off over corruption continues. Yogi Adityanath in a rally targeting Akhilesh Yadav and saying that he's part of the Vasooli gang. Listen into exactly what the UP Chief Minister said. पहले एक गरीब के लिए आने वाले आवास का पैसा, बिजली का ये पैसा, शौचालय का ये पैसा कहां जाता था, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सप्ताह पहले आपने नोटों की गड्डियों के पहाड़ जेसीबी से निकालते हुए देखा होगा। कैसे समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घरों से नोट की गड्डियां निकल रही हैं। ये नोट की गड्डियां खेत और खलिहानों में नहीं पैदा हो रही हैं, ये जनता की कमाई पे डकैती डाल करके विकास के कार्यों को अवरुद्ध करके जो अनैतिक तरीके से इन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, ये वही पैसा है, वही पैसा आज निकाला जा रहा है। So that's the all-out attack by Yogi Adityanath. This is a pattern that we've been seeing also between political leaders. Samarth is joining us live this evening with the latest on that. Samarth, the raids that we've seen in the last 1 week playing out in Kannauj and Kanpur has become the focal point essentially of every political party. The latest, of course, is that attack by Yogi Adityanath where he's referred to Akhilesh Yadav as being part of a Vasooli gang. It's all coming down to who's linked to which businessman. See, today Samajwadi Party Chief Akhilesh Yadav announced that if SP is voted to power, then they will provide 300 unit electricity free to the people of Uttar Pradesh. So it was a big thing for any announcement. So that Yogi Adityanath has now hit back at Akhilesh Yadav, saying the party never provided proper electricity to the people of Uttar Pradesh, be it in rural areas or in urban areas. So how this will help, how this new announcement will help the poor or the middle class people about the free 300 unit electricity. So it was a clear hit back on Akhilesh Yadav by CM Yogi Adityanath. He also said earlier Chacha Bhatija used to take everything from every schemes, be it through the joinings, be it through the other employment schemes. Nothing came to the normal public. So that is what CM Yogi Adityanath was referring, and he was in a way attacking Akhilesh Yadav. And yes, as raids are on in Kannauj, the SP MLC Kannauj, the residence is already being raided. We were reporting from day 2, and so this is a big thing. And earlier Piyush Jain's house was raided, and before that Samajwadi Party close aides of Akhilesh Yadav, be it Gyanendra Yadav, right, Manoj Yadav, or other persons, Rajiv Rai, house were raided. So this is the big thing before UP elections, and this remark is a clear hit back at Akhilesh Yadav after the announcement of free 300 unit power. Yes. All right, Samar, thank you for those details. I just want to play out exactly what Yogi Adityanath had to say. He's fired a Vasooli gang jibe, and he's fired this at Akhilesh Yadav. We played out for you earlier about how he's linked these raided businessmen to SP. Listen into how he directly targeted Akhilesh as well. नौजवान के लिए पहले नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे का पूरा गैंग वसूली पे उतर आता था। और भाइयों बहनों, उसके बाद होता क्या था? भर्ती होती थी विवादित, न्यायालय लगाता था स्टे, और उसके बाद नौजवान की भविष्य के साथ खिलवाड़ हो जाता था। लेकिन आज तो 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दी। Let's take this across to Anurag Bhadoria from SP, who's joining us on this broadcast. Anurag ji, first of all, a very happy new year to you. We have no doubt that this 2022 is going to see a lot of politics in the state of Uttar Pradesh. But your reaction, sir, to what Yogi Adityanath has said, saying that Akhilesh belongs to the Vasooli gang. आपको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको, आपके परिवार को, आपके चैनल को, आपके सारे साथियों को और आपके अगल बगल के जितने भी लोग हैं। सवाल ये नहीं है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप योगी जी की कोई भी आप स्पीच उठा के देख लीजिए, जितनी स्पीच जहां बोलते हैं आप उसकी कॉपी कर लीजिए। आप दोबारा स्पीच उनकी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वही रटी रटाई 5-10 बातें उनके पास हैं
वही रटी रटाई बातें बोलते रहते हैं। कोई नई बात आपने बताई तो बोल दीजिए, वही बातें बोल रहे हैं शुरू से वही कि ना, माने उनकी स्पीच में नयापन नहीं है। जो व्यक्ति नई बात नहीं कह सकता, जो व्यक्ति नई दिशा नहीं दे सकता, जो व्यक्ति के अंदर नए विचार ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर में कोई विजन ना हो, जिस व्यक्ति के अंदर में शब्दावली ना हो, जो समाज को ना जानता हो, समाज की परेशानी ना समझता हो, समाज की तकलीफ को ना समझता हो, यूथ की तकलीफ को ना समझता हो, यूथ के बारे में ना जानता हो, वो व्यक्ति क्या बात करेगा? उसे यही नहीं पता चल रहा है बोल क्या रहे वो गिनी चुनी बातें। अरे भैया, उत्तर प्रदेश इतना एक 24 करोड़ का उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे तरह तरह की समस्याएं हैं। यूथ की अपनी समस्याएं हैं, महिलाओं की अपनी समस्याएं हैं, सीनियर सिटीजन की अपनी समस्याएं हैं, यहाँ पे ज्योग्राफिकल समस्याएं हैं, यहाँ पे हिस्टोरिकल आप किसकी बात करते रहते हो? आप गिने चुने वही बातें करते रहते हो जिससे आपका व्यक्तिगत हमला तो हो सकता है, लेकिन समाज का भला नहीं हो सकता उससे। आप एक बात कहते रहते हो, बिजली बिजली। अरे बिजली, आप एक चीज बताइए कि आपने बिजली का प्लांट कोई लगाया क्या इतने दिनों में? एक प्लांट लगाया तो बताओ। बात लंबी लंबी करते हो। इनको ये नहीं पता होगा बिजली का प्लांट होता क्या है, लगता कैसे, ये नहीं बता पाएंगे। मैं इनसे चैलेंज के साथ पूछता हूँ, ये नहीं बता पाएंगे बिजली का प्लांट कैसे लगता है और क्या होता है और कहाँ कहाँ बिजली का प्लांट है। जो उनके अधिकारियों ने इनको लिख के दे दिया वही अपना जाके अपना रट के बोल के चले जाते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, कुछ तो पढ़िए, कुछ तो सीखिए, कुछ तो जानिए। आप हिंदुस्तान, उत्तर प्रदेश इतना डेवलप प्रदेश, उन्नतशील प्रदेश को आप के बारे में कुछ बोलते हो तो आप कुछ प्रदेश के बारे में बोलिए। आपको ये नहीं पता है कि 2-2, 3-3 घंटे बिजली आप देते हो। आपकी यहाँ पे अभी कोयला खत्म हो गया था, अंधकार हो गया था पूरा उत्तर प्रदेश। कोयला नहीं था हमारे उत्तर प्रदेश में कि आप यहाँ पे थर्मल पावर बना पाए। अब थर्मल पावर का मतलब नहीं सोचते हो, समस्या तो ये है, अगर हम थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, उनसे अगर हम बात करने लग जाए तीनों पे बैठ के कि भाई सोलर पावर, तो उसको समस्या हो जाएगी। दिक्कत यह है कि जब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में समझदार, विजनरी, पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। और वो सिर्फ आपको अच्छी तरह पता होगा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, जिनको इस बात का एहसास है कि उत्तर प्रदेश और विजन क्या होता है। अनुराग जी, जब योगी जी भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहे थे उस समय उसने ये भी बताया कि जो भी बिजनेसमैन अब तक रेड हुए हैं इस पिछले हफ्ते में, वो सब एसपी आपके पार्टी से लिंक्ड है। ये तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री झूठ बोलता है। सोचो आप, कितना बार झूठ बोलता है मुख्यमंत्री। अरे रेड करने को सरकार आपकी है। आपने तो पीयूष जैन पे रेड की थी जहाँ पे 2.5 लाख कैश मिला है। बताइए कैसे आया? काला बाजारी कैसे हो रही है? सरकार आपकी है। आप बताइए गोल्ड कैसे आ गया? होलोग्राम गोल्ड पे विदेशी लगा हुआ है। मुख्यमंत्री को ये नहीं पता होगा कि होलोग्राम विदेशी होता क्या है। अब वो विदेश से गोल्ड कैसे आता है उनको ये नहीं मालूम होगा। उनको लग रहा होगा कि झोला में डाल के आदमी आ जाता है। उन्हें ये नहीं पता होगा या तो एयरपोर्ट से आ सकता है या तो आपके थ्रू आप समुद्र के रास्ते से ला सकते हैं। और कैसे ले आएंगे वो बात दूसरी है कि वहाँ पे कहीं अगर उसके नेपाल के रास्ते, गोरखपुर के रास्ते आ सकता है और कौन से रास्ते से आ जाएगा जरा बताएं मैं। तो वहाँ पे तो बीएसएफ होती है, एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी इनकी होती है, हर जगह केंद्र सरकार की सिक्योरिटी होती है। फिर कैसे गोल्ड आ गया, इसके बारे में नहीं बात करेंगे। उन्हें मालूम, उन्हें बोलना है बस। We'll try to get answers from the BJP. We'll try to get answers from the BJP to those questions, Mr. Anurag Bhadoria. Thank you for joining us on this broadcast.